So good afternoon, everyone. My name is Ankit Pannu. This year I have secured All India rank 31st. This was my second attempt. In my first attempt, I had secured All India rank 444, and I was allotted Indian Revenue Services, Customs and Central Excise. I have done my engineering from Delhi Technological University in 2016. So today I'm here to share what a mindset of a person or a UPSC aspirant is while whole preparation. How should he strategize? How should he begin? So first of all, I would say that we should start early. Starting early has its advantages. I started my preparation in third year itself in my college. So how to start and what areas to focus, we will talk on that. But most importantly, I would like to tell you that this process, this whole process is a learning curve. You would be completely changed. When I began my preparation, I never thought that I could speak in front of so many people, or I could even portray my opinion or my thoughts. But after 2 years, 3 years into this, you will feel that change, that your personality has completely changed. Your way of looking at things, your way of analyzing things, it completely changes. You change as a person completely in this. Even if, let's say, this is very unpredictable exam. If someone is not able to clear, then also the changes that he will find in himself, they will be so huge that throughout his life, he would be indebted that I had prepared for UPSC. इसने मुझे ये दिया. Itna positives, this is a life-changing experience, this preparation itself. So another thing is, we people, I have qualified it in both my attempts. So it is not a very difficult task. So I would simplify it for you. The first thing is, we have to stay away from negativity. Like, I was very blessed कि मैं राजेंद्र नगर में नहीं रहा. I was away from all this negativity, negative vibes. So one important thing I would like to tell you here is, जो भी आपके दोस्त हैं, relatives हैं, if you get negative vibes from them, what I mean by this is, if they say कि IIT तो नहीं हुआ तुमसे, ये कैसे निकालोगे? Stay away from such kind of people. Shut them out of your life. You don't need them. कुछ नहीं करेंगे वो, आपको डिमोटिवेट करेंगे. और डिमोटिवेट, थोड़ा भी अगर डिमोटिवेशन आपके कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आ जाए, बिकॉज दिस इज अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस. प्री में 2-3 क्वेश्चन आपका माइंड कहीं और था, किसी और की बात पे था, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आ गया, किसी की बात याद आ गई या डिफिकल्ट आ गया, नहीं होना था तेरे से तो डिफिकल्ट. तो ये सब चीज़ें थॉट से दूर रहोगे, तभी काम रहोगे, कंपोज रहोगे एग्जाम में. और काम रहोगे, कंपोज रहोगे, तभी अपना बेस्ट दे पाओगे. अपना बेस्ट दे पाओगे तभी एग्जाम क्लियर कर पाओगे. ये नहीं है कि प्री अच्छा हो गया या मेंस में 4 पेपर अच्छे हो गए तो निकल जाएगा. पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस यू हैव टू रिमेन काम, कंपोज्ड, पॉजिटिव. पॉजिटिव रहोगे जरूर निकलेगा. और स्ट्रेटेजी तो है ही, मतलब इफ यू विल फॉलो अ सिंपल स्ट्रेटेजी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं. अभी उस पर बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, जो हम खुद ही ले लेते हैं अपने ऊपर, खुद का ही बर्डन अपने ऊपर डालते हैं. तो अब थोड़ा जैसे, अब आपको ऐसे फ्रेंड्स भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि 1 महीने में मैंने सारी NCERTs कर ली, मेरे 140 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 150 मार्क्स आ रहे हैं, तेरे तो 100 ही आ रहे हैं. मतलब स्टे अवे फ्रॉम देम ऑल्सो. और अगर कोई कहता है कि तू तो IAS बनेगा, उनसे भी दूर रहना. मतलब वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस या फिर जस्ट टू से अंडरस्टैंडिंग. तो इम्पॉर्टेंट यही है. प्रिपरेशन तो सब करते हैं, सब 10 घंटे पढ़ते हैं. इम्पॉर्टेंट है माइंडसेट. अब 4 दिन पढ़ के 5वें दिन सबको होता है कि नहीं पढ़ा जा रहा आज. सबको होता है, मेरे को भी होता था. यहाँ पे जो जितने भी टॉपर्स बैठे इनको भी होता ही होगा. कोई लगातार 1 साल तक 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकता.
ह्यूमन बीइंग है सब, सबके माइंड की कैपेसिटी है। रोबोट तो है नहीं कि 12 घंटे पढ़ के आज ज्योग्राफी कंप्लीट, कल हिस्ट्री कंप्लीट, परसों ये, अगले दिन एग्जाम 100 टॉप। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स की तरह प्रोसेस को लो, प्रिपरेशन को करो और काम रहो थ्रू आउट द प्रोसेस। नहीं आते मार्क्स, 80 मार्क्स आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ कि मेरे बस का नहीं है। मेरे भी टेस्ट सीरीज में फर्स्ट टाइम पे आई नेवर यूज टू गेट 120, 115, 110, एक दो टेस्ट में आ जाते थे, बट आई क्लियर्ड इट इवन ऑन मार्जिन। दैट इज द लक पार्ट इन दिस एग्जाम। लक पार्ट होता है बट इट इज नॉट दैट मच। लक पार्ट अगर ज्यादा होता तो मेरा दोनों बार नहीं निकलता। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 3 बार देते हैं, तीनों बार निकलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है जब कोई एक ही बंदा 3 बार निकाल रहा है। फिर तो आपके या तो माइंडसेट में प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है। तो स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। कुछ नहीं करेंगे वो, आपका नुकसान करेंगे, 1-2 साल एक्स्ट्रा पढ़वाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जाम इज टू नो द सिलेबस। इफ यू डोंट नो द सिलेबस तुम कुछ नहीं कर सकते। सो प्रिंट आउट लो, रखो अपने पास सिलेबस का, उसको याद नहीं करना है वर्ड बाय वर्ड कि GS1 की फर्स्ट लाइन में ये है, 5th लाइन में ये है, ये सिलेबस का एग्जैक्ट वर्ड ये है। यू डोंट हैव टू क्रैम इट, यू जस्ट हैव टू गेट एन ओवरव्यू। इट शुड बी इन योर माइंड। कहाँ पे हेल्प करेगा ये?